Okay, children, we are going to start the class now. The chapter name is haloalkanes and haloarenes once again. And this is the second class of haloalkanes and haloarenes. As I discussed earlier, the IUPAC name of the following compounds. The compounds names are given. Secondary butyl chloride, also IUPAC name is 2-chlorobutane. Okay, I think आप सभी लोगों को यहाँ तक clear हो गया था first three. Now the confusion is what is allylic group? Now the confusion arises. What is allylic group? So let's consider the allylic group. So let's create a page. See children, the allylic group is given by CH2 double bond CH single bond CH2 plus. So many children are confused in the valency of the carbon. So we can also write down in the form of CH2 double bond CH2 plus. Now children, as you can see, the valency of carbon is 4 everywhere. You can see 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. As I told you earlier, the valency of carbocation, that means C plus, is 3. तो बच्चों C plus की वैलेंसी जो होती है वो 3 होती है. आपको स्ट्रक्चर में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता है तो मैंने इसको ओपन करके लिख दिया. आई थिंक अब आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर होगा. और बच्चों अगर हम इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें, दिस इज C, दिस वन, दिस इज C, दिस वन. अगर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको ये प्रोसेस मैं आपको समझाता हूं किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. सबसे पहले ये वाला जो C है बच्चों वो ये है, और ये वाला जो C है बच्चों वो ये है, और C और C के बीच में डबल बॉन्ड है. ठीक है. उसके बाद बच्चों ये वाला जो थर्ड वाला C है वो ये है, और इसके ऊपर प्लस चार्ज. तो बच्चों जो एजेस होती हैं वो कॉर्नर जो भी होते हैं कॉर्नर वो कार्बन को ही रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर हम इसको इस तरह से बना दें तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. ये सारे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है. दीज आर ऑल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नोन एज एलाइल कैटायन, नोन एज एलाइल कैटायन. I think now it is clear what is allyl cation and why ये स्टेबल क्यों होता है. ये स्टेबल क्यों होता है इसके लिए आपको बताया जाता है कि इसमें रेजोनेंस होता है. रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द कंपाउंड. ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये कंपाउंड में डीलोकलाइज कर जाता है. और किसी भी कंपाउंड में चार्ज जितना मिनिमाइज होगा, चाहे वो चार्ज प्लस का हो चाहे वो चार्ज माइनस का हो, किसी भी कंपाउंड में चार्ज जितना भी मिनिमाइज हो जाएगा वो कंपाउंड एज मच एज स्टेबल हो जाएगा. तो बच्चों मैंने बताया था कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनता है वो कुछ इस तरीके से होता है. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है डबल का सिंगल कर दो और सिंगल का डबल कर दो और जो चार्ज है वो यहां पे ले आओ. दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. दैट मींस बच्चों जो प्लस का चार्ज है वो क्या कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है. पहले कार्बन पे भी है, तीसरे कार्बन पे भी है. इसका मतलब क्या हुआ, इसके डीलोकलाइजेशन की वजह से ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाता है. That's why कि allylic group is more stable than vinylic group. Allylic group is more stable than vinylic group. और allylic group क्या होता है? What is allylic group? CH2 double bond CH plus. This is allylic group, or this is vinylic group, and it can be represented by the bond line formula also. The bond line formula can be written as like that. See children, the valency of carbon is 4
and valency of C plus, that is carbocation, is 3. Now you can also write down in this form. This form is known as condensed form, and this form is known as bond line formula. If you are confused in the structure, then create bond line formula. You always get the solution easily. So this is the vinylic group. There is no resonance possible in vinylic group because there is no conjugation in vinylic group. I think it is clear now. Allylic group, what is allylic group, what is vinylic group? So that means every allylic compound have a conjugation? Yes. Is there Okay, conjugation? अगर conjugation होती है तो compound में resonance होता है, तभी allylic में resonance है. okay, तो बच्चों अगर आपको resonance नहीं पता, I think आपको 11th के concepts ही नहीं पता है, तो आप एक बार benzene बना लेते हैं. Let's draw with benzene. तो structure of benzene, as you can see, the bond line formula C6H6. The structure of benzene is C6H6. As you can see, the valency of carbon is not completed, so we provide the bond in alternate position known as pi bond. Now this is the formula of benzene. You can write as C6H6, or you can write also like that. This is benzene. You can also like that. This is benzene. These are all benzene. But if you are confused, then draw the bond line formula of benzene. Now you can see, as there are so many compounds are formed with the help of benzene. If you can see, if we replace this H, if we replace this H by OH, then what is the formation of compound known as phenol? If you replace the hydrogen of benzene, you can see the formation of phenol. Can you draw the structure of phenol? Can you Yes, draw sir. the structure of phenol? This is the structure of phenol. Replace one hydrogen by OH group. Replace one hydrogen by OH group, then the structure formed is phenol. Replace one hydrogen by OH group, structure formed is phenol. As you can see in the books, it is written like this. This is phenol. But you are confused. If you are confused in phenol, then draw bond line formula as I can draw. जैसा कि मैं ड्रॉ कर सकता हूं तो आप भी ड्रॉ कर सकते हैं फिनॉल का फॉर्मूला. ये फिनॉल का फॉर्मूला आपके सामने बना है. Now remove the acetic H from the phenol. Now remove the acetic H from the phenol. Now confusion arises. What is acetic H? Acetic H क्या होता है? Acetic H का मतलब ये होता है कि हमें वो वाला हाइड्रोजन निकालना है जिस हाइड्रोजन को निकालने के बाद जो भी नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो वो स्टेबल हो. As you can see, when the removal of hydrogen from the carbon acquires the negative charge, and when the removal of hydrogen from the oxygen, as the oxygen acquires negative charge. अगर हम कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हैं तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन हटाते हैं तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है. तो नेगेटिव चार्ज कहां पे स्टेबल होगा? नेगेटिव चार्ज वहीं पे स्टेबल होगा जो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. तो कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? दिस इज ऑक्सीजन. इसका मतलब हाइड्रोजन कहां से रिप्लेस होगा? ऑक्सीजन से. सो वेयर इज द एसिटिक एच? द एसिटिक एच इज कनेक्टेड बाय द ऑक्सीजन, not with carbon. Now replace the acetic H. Now you can see the replacement of acetic H
and oxygen acquires negative charge, and negative charge with a lone pair. In class 11, the principle of organic chemistry, you already studied the homolytic fission and heterolytic fission. And in this topic, the heterolytic fission occur an oxygen gas and oxygen atom acquire the negative charge. Now you can see the negative charge delocalize in the benzene ring. अब आप देखेंगे कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो delocalize करेगा बेंजीन रिंग पे. How it is delocalized? If you are still confused कि why a lone pair on negative charge, then tell me, I will confirm you why negative charge has a lone pair. If anyone has a confusion, inform me why negative charge has a lone pair. If you can see, I will explain. There is a bond between A and B. This bond is known as covalent bond, and covalent bond has two electrons. One of electron is A and other electron is B. There is two ways to break the bond. One way, the both atom, ये दोनों एटम क्या करेंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो सकते हैं. एक तो वे ये हो सकता है, और दूसरा वे क्या हो सकता है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ए ने बी से दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, और ए ने अगर इलेक्ट्रॉन लिए तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, और ए ने इलेक्ट्रॉन अगर दिए हैं तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा. अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 2 प्लस का, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2 माइनस का. लेट्स से यहां पर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. सो बी क्या करेगा, बी ए के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएगा. और जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इसको कहते हैं कौन सा फिजन, इसको कहते हैं हेट्रोलिटिक फिजन. तो हेट्रोलिटिक फिजन में ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया तो ए के ऊपर प्लस चार्ज आया, और बी ने ए से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसलिए उसके ऊपर एक माइनस का चार्ज आया. लेकिन माइनस के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, वो एक बी का खुद का है और एक ए ने दिया है वो उसका है. इसलिए ए के ऊपर प्लस चार्ज आया है और बी के ऊपर एक माइनस चार्ज आया है. और माइनस चार्ज के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स, विच इज ऑल्सो नोन एज वन लोन पेयर, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग लोन पेयर भी कहते हैं. उसमें एक इलेक्ट्रॉन बी का है और एक इलेक्ट्रॉन ए का है. तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए. तो दिस इज अ वैरायटी ऑफ होमोलिटिक फिजन. तो होमोलिटिक फिजन में क्या बनता है, होमोलिटिक फिजन में बनता है फ्री रेडिकल. और हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होता है, कैटायन और एनायंस का फॉर्मेशन होता है. इसको हम लोग कहते हैं बच्चों हेट्रोलिटिक फिजन. गाना बजा देंगे, रात भर गाना सुनेंगे. Okay, this is known as heterolytic fission, and the cations and anions are formed in heterolytic fission. Now we are going to draw the structure of phenol. This is the phenol, and after removing the acidic H from phenol, we get the ring of phenoxide. This is the ring of phenoxide. Now there is a resonance in phenoxide ring. We can draw the resonating structure of phenoxide ring. As you can see, this is the phenoxide ring. If you are still confused how to draw resonating structure, as I told you earlier, this is the part of class 11. If you are still confused, you can see the resonating structure of phenoxide ion. How the resonance occur? अब इसको हम लोग समझ लेते हैं. जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर लोन पेयर है, वो लोन पेयर बच्चों कार्बन पे आता है. जब लोन पेयर कार्बन पे आता है तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पहले से हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन है 8, लेकिन ऑक्सीजन ने जैसे ही उसको एक लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो कार्बन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कार्बन के पास डी ऑर्बिटल्स तो होते नहीं है कि वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर ले, क्योंकि कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए कार्बन 10 इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रख पाता। वो क्या करता है, वो अपने इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। दिस इज द पार्ट ऑफ रेजोनेंस। एज द प्रोसेस बिगिन, द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिकम्स लाइक दैट। ये नेगेटिव चार्ज यहां आ जाता है बच्चों, और डबल का सिंगल हो जाता है, और सिंगल का डबल हो जाता है। Now, this is the first resonating structure, as you can see. If you apply shortcut, then you will also get the shortcut. Single is double, and double becomes single, and negative charge transferred to the third atom. Now you can see the resonating structure. If you are still confused, then inform me. What will the next part? What will be the next part? This lone pair again treat as a same behavior. This will carbon, ये कार्बन के पास फिर से जाएगा। कार्बन के पास फिर से क्या होते हैं बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये लोन पेयर फिर से कार्बन के पास जाएगा तो कार्बन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कार्बन फिर से अपने पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और अगेन you will get the same strategy in this structure. Single become double, double become single, because carbon breaks this pi bond and negative charge goes to that carbon. Now you can see it is very easy. Student, each carbon has hydrogen. You can also attach if you are confused. तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब कुछ भी नहीं है, यानी कि आपको क्या करना है, जहां पर कॉन्जुगेशन दिखाई देगी वहां पे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो बच्चों अगर आपको ये डिटेल में जाना हो तो अब आप डिटेल में ना जाइए। ये फिर से लोन पेयर इधर आएगा, फिर कार्बन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है, और नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता रहता है। ठीक है, तो बच्चों दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, एंड यू अप्लाई ऑल्सो इन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला एंड ऑल्सो इन कंडेंस्ड फॉर्म। सिंगल का डबल, डबल का सिंगल, एंड नेगेटिव चार्ज गोज टू दैट कार्बन। I think it is be clear now. Now again resonance occur, and बच्चों these signs are known as resonating sign. These signs are known as resonating sign. इनको हम resonating signs से represent करते हैं, या इनको हम canonical signs भी कहते हैं। तो this sign has a special property, has both ways arrow. Single का डबल, डबल का सिंगल, again negative charge goes to that oxygen. Now you can see as the resonating, जैसा कि आप देख सकते हैं जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बने हैं उसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ माइग्रेट कर रहा है। तो बच्चों अगर आपने ध्यान से देखा हो तो नेगेटिव चार्ज कहाँ माइग्रेट कर रहा है, उन पोजीशंस को आप बता सकते हैं। नेगेटिव चार्ज कहाँ माइग्रेट करता है। This is the structure of phenol. Now it is clear from you. When negative charge delocalizes in the ring, वो कहाँ गया? This is known as this position, this position, this position. This position is known as ortho. This position is known as ortho, and this position is known as para. तो बच्चों नेगेटिव चार्ज का माइग्रेशन कहाँ पे हुआ है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन। That means benzene ring इलेक्ट्रॉन रिच है कहां पर? ऑर्थो और पैरा पोजीशन। I think it is very clear. What is electron rich position? जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं उनको हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स भी कहते हैं। तो बच्चों अगर बेंजीन रिंग पे कोई अटैक करेगा,
लेट्स से अगर बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां पर अटैक करके प्रोडक्ट बना सकता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, ये भी क्लास 11th का ही पार्ट है। इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रो डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रोफाइल्स आर आल्सो नोन एज लुईस एसिड। न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, आल्सो नोन एज लुईस बेसिस। तो बच्चों आपको ये पोजीशंस क्लियर होना चाहिए कि जब रेजोनेंस होता है तो नेगेटिव चार्ज कहां कहां जाता है? ऑर्थो पे, पैरा पे, मेटा पोजीशन पे नहीं जाता। दिस पोजीशन इज मेटा, मेटा पे नहीं जाता, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज जाता है। इसका मतलब हम इस तरह के कंपाउंड्स को, जैसा कि आपके सामने फिनॉल बना है, इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थो पैरा एक्टिवेटर, क्योंकि ऑर्थो पैरा को एक्टिवेट कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही फिनॉल पर किसका अटैक होगा? फिनॉल पे किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। क्या आपने कभी किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया क्लास 11th में? नहीं कराया, तो मैं आपको बताता हूं। बच्चों आपने एक बहुत सिंपल सी रिएक्शन देखी होगी कि जैसे बेंजीन है, बेंजीन का आपने नाइट्रेशन कराया होगा, और नाइट्रेशन के लिए क्या चाहिए होता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर रिक्वायर्ड। नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4. This is the nitrating mixture, and this becomes nitrobenzene. तो बच्चों हम किसी का भी नाइट्रेशन कराते हैं तो वहां पे क्या क्रिएट होता है? एक इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होता है। इलेक्ट्रोफाइल इज NO2+, इलेक्ट्रोफाइल इज NO2+, जो यहाँ पे क्रिएट होता है। वो NO2+ जब बेंजीन रिंग पे अटैच होता है तभी बनता है नाइट्रोबेंजीन। और बच्चों वैसे भी ये क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, अगर आपको नहीं याद है तो आप याद रख लीजिए कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर कभी भी आएगा तो उससे जो इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होगा उसका नाम होगा NO2+। इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन deficient species, it is also known as Lewis acid, and this compound is nitrobenzene. इसको हम लोग क्या कहेंगे? नाइट्रोबेंजीन। दिस इज नाइट्रोबेंजीन। और बच्चों अगर मैं आपको फिनॉल दे दूं तो क्या फिनॉल देख के कंफ्यूज हो जाओगे? कहोगे सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पे जो अगेन आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है दोनों के कॉम्बिनेशन से, वो NO2+ जनरेट होता है। तो NO2+ के पास बच्चों दो चांसेस होते हैं, वो कहां जा सकता है? या तो उसकी ऑर्थो पोजीशन पे जा सकता है या तो उसकी पैरा पोजीशन पे जा सकता है। तो यहां बच्चों दोनों तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। तो फिनॉल में जब हम लोग नाइट्रेशन कराते हैं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। उसको हम इस तरह से लिखते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल प्लस पैरा नाइट्रोफिनॉल। दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहां पे जो दो पोजीशंस हैं इलेक्ट्रॉन रिच, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, वहीं पे नेगेटिव चार्ज है। तो NO2+, उसके ऊपर प्लस का चार्ज है, तो प्लस हमेशा कहां जाएगा? माइनस की तरफ जाएगा। लेकिन उसके पास दो पोजीशंस है, ऑर्थो पे और पैरा पे, इसलिए यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये आपने कंपाउंड्स क्लास 11th में भी देखे होंगे। अब आपको पूरी तरीके से याद आ गया होगा कि रेजोनेंस कैसे होता था, स्ट्रक्चर कैसे होते थे। 11th क्लास में आपको ये भी बताया जाता था कि ऑर्थो पैरा एक्टिवेटर ग्रुप कौन से होते हैं, क्योंकि ये पता होना आपको काफी जरूरी है, वरना क्लास 12th में हम लोग एक एक करके प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, इसलिए आपको ये पार्ट जरूर पता होना चाहिए। और बच्चों अगर आप इसमें और जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं आपको और भी बता सकता हूं। जो पैरा प्रोडक्ट होते हैं वो ज्यादातर मेजर होते हैं, इसलिए पैरा वाले पे आप मेजर लिखिएगा और ऑर्थो वाले पे माइनर लिखिएगा। ऐसा क्यों होता है इसका भी आपको रीजन आगे मिलेगा, लेकिन आपको पहले इतना समझ में आना चाहिए कि कैसे नाइट्रेशन होता है। और नाइट्रेशन में जो अटैकिंग रिएजेंट क्रिएट होता है उसको हम लोग कहते हैं NO2+, और जिसपे अटैक करता है उसको हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। तो फिनॉल पे अटैक हो रहा है तो फिनॉल सबस्ट्रेट है। कौन अटैक कर रहा है? अटैकिंग रिएजेंट, दैट इज NO2+। तो व्हाट इज सबस्ट्रेट? जिसपे अटैक होता है। एंड व्हाट इज अटैकिंग रिएजेंट? NO2+।
आई थिंक यहां तक क्लियर है आपको कि बेंजीन में या फिनॉल में किस तरह से आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे। आपको एलाइलिक का भी अब रेजोनेंस क्लियर हो गया होगा कि एलाइलिक में भी कुछ इसी तरीके से रेजोनेंस हुआ होगा। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अब हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं विद हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। नॉट इस कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले बच्चों अब हम लोग यहां पर देखते हैं सेकंड वाला पार्ट जरा ध्यान से देखते हैं क्या इसमें आपको कंफ्यूजन है। ये विनाइल क्लोराइड है, दिस इज नोन एज क्लोरोइथेन, विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड आपको ग्रुप क्लियर ही है, दिस इज नोन एज विनाइलिक ग्रुप। तो इसको हम लोग विनाइलिक ग्रुप कहते हैं। और यहां पर आप कुछ भी अटैच करेंगे तो बन जाएगा विनाइल क्लोराइड। ब्रोमीन ऐड करेंगे तो विनाइल ब्रोमाइड। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। उसी तरीके से बच्चों आपको एलाइल ब्रोमाइड भी क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज एलाइल ब्रोमाइड? दिस इज CH2, अगेन यू कैन सी CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। दिस इज कौन सा ग्रुप है बच्चों? ये ग्रुप है आपका एलाइलिक ग्रुप। इसमें कोई भी ग्रुप अटैच करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एलाइल ब्रोमाइड, एलाइल क्लोराइड। और इसका IUPAC नाम भी क्लियर होगा, दिस इज 3-ब्रोमोप्रोपीन। तो आई थिंक बच्चों IUPAC नाम आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरह से लिखते हैं, और इसकी जनरल नेमिंग भी आप काफी लोगों को क्लियर हो गई होगी। ओके तो बच्चों हम लोग अब आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या ये क्वेश्चन नंबर 10.1 सभी बच्चों ने कर लिया है? तो बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? तो बच्चों दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.1 द IUPAC नेमिंग। फर्स्ट वन इज 2-chloro-3-methyl pentane। तो बच्चों कभी भी IUPAC नेमिंग करनी है उसका बहुत आसान तरीका होता है। सबसे पहले हम लोग लास्ट वर्ड देखते हैं विच इज ऑल्सो नोन एज रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में बच्चों यहाँ पर पेंटेन। तो पेंटेन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 कार्बन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बना लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उस पर काउंटिंग कर लेते हैं कहीं से भी, चाहे लेफ्ट से कर लीजिए चाहे राइट से कर लीजिए। 1 2 3 4 5। उसके बाद बच्चों यहाँ पे लिखा है 2-chloro, दिस इज 2-chloro, 3-methyl, दिस इज 3-methyl। ये हो गया बच्चों। इतना करने के बाद हम लोग हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं, हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। दिस इज 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1 1 1 1 1 हो गया। तो बच्चों दिस इज द फर्स्ट IUPAC नेमिंग, उसका आंसर मैंने लिख दिया। सेकेंड IUPAC नेमिंग, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। लिखा है 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। तो बच्चों साइक्लोहेक्सेन का क्या मतलब हुआ? साइक्लोहेक्सेन, यहां पे कंफ्यूजन क्लियर करिएगा, यहां पे साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ है। तो साइक्लोहेक्सेन आप बनाइए, और साइक्लोहेक्सेन बनाने के बाद उस पे काउंटिंग करिए, क्योंकि 1-chloro-4-ethyl लिखा हुआ है। दिस इज 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कर लीजिए काउंटिंग। 1-chloro-4-ethyl, this is 1-chloro and 4-ethyl, 4-ethyl, ethyl is CH2CH3, 1-chloro 4-ethyl। now it is clear, यहां तक सबको क्लियर हो गया? 1-chloro 4-ethyl साइक्लोहेक्सेन, सभी को क्लियर है? यस सर। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है? 4-tert-butyl-3-iodoheptane। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर हेप्टेन है रूट वर्ड, तो यानी कि आप 7 कार्बन की पहले चेन बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद उस पे काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन तो हो गई। उसके बाद 3 पे आयोडो, तो 3 पे आप आयोडो लगा दीजिए, दैट मींस आयोडीन। जैसे ब्रोमो होता है, क्लोरो होता है, वैसे आयोडो होता है। तो 3 पे हमने क्या लगा दिया बच्चों? आयोडो लगा दिया। उसके बाद 4 पे लिखा हुआ टर्शरी ब्यूटेन,
तो 4 पे जो कार्बन है उस कार्बन को पहले आप टर्शरी बनाओ और उसके साथ 4 कार्बन अटैच कर दो। ये देखिए क्या लिखा है, टर्शरी ब्यूटेन। तो पहले तो आप उसको टर्शरी बनाओ, यानी 4 के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसको पहले टर्शरी बनाओ, यानी ये वाला जो कार्बन है बच्चों उसको 3 कार्बन से अटैच कर दो तो वो टर्शरी बन जाएगा, और उसको ब्यूटिल बना दो। ब्यूटिल मतलब ओवरऑल वहां पे 4 कार्बन आपको नजर आने चाहिए, तो इसका मतलब आपको यहाँ 4 कार्बन नजर भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पार्ट क्लियर हो गया। 4 टर्ट ब्यूटिल 3 आयोडो हेप्टेन। इसकी वैलेंसी पूरी करना चाहो तो वैलेंसी पूरी कर सकते हो। वैलेंसी पूरा करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ आपको हाइड्रोजन अटैच करने, CH3 CH2, यहाँ पे एक H आएगा, यहाँ पे एक H आएगा, और उसके बाद यहाँ H2 H2 H3, यहाँ H3, यहाँ H3, यहाँ H3, ये अटैच हो गया। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है बच्चों, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटूइन। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों ब्यूटूइन बना लेते हैं। 1 2 3 4 काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। 2 इन है तो हमने 2 पर इन कर दिया। फिर क्या लिखा हुआ है, 1,4 डाइब्रोमो, यानी 1 पे ब्रोमीन लगा दो और 4 पे भी ब्रोमीन लगा दो, तो 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। तो बच्चों बन के तैयार हो गया, देख लो आप। इसमें वैलेंसी पूरा करने के लिए आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं, तो हाइड्रोजन आप अपने आप से भी लगा सकते हैं। दिस इज फोर्थ पार्ट। अब हम लोग बच्चों फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटिल 2 मिथाइल बेंजीन। बच्चों ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहां पर बेंजीन का फॉर्मेशन कहा गया है, तो सबसे पहले आप बेंजीन बना लीजिए। तो मैं आपको बेंजीन पहले बना के देता हूं, फिर बात करता हूं, क्योंकि इसमें रूट वर्ड की जगह पहले बेंजीन का नाम लिखा है। तो बच्चों ये मैंने बेंजीन बना लिया, दिस इज बेंजीन। और उसके बाद बच्चों मैं इसमें काउंटिंग कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6, ये काउंटिंग कर ली। लिखा है 1 ब्रोमो, ठीक है, फिर लिखा है 2 मिथाइल, ध्यान देखो यही लिखा है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और 4 पे है सेकेंडरी ब्यूटिल, यानी कि 4th पे आप क्या करोगे, एक 4 कार्बन बनाओ, लेकिन आपको सेक ब्यूटिल बनाना है 4th पे, तो जो दूसरा कार्बन हो यानी जो सेकेंडरी कार्बन हो उसको 4th कार्बन के साथ जोड़ दो, क्योंकि मैंने कल आपको ये प्रोसेस बताया था कि अगर दूसरे वाले कार्बन को आप जोड़ते हैं तो सेक ब्यूटिल होता है, और पहले वाले कार्बन को जोड़ते हैं तो एन ब्यूटिल होता है। तो ये एन ब्यूटिल नहीं है, ये सेक ब्यूटिल है। इसलिए उस चेन का जो 2 डिग्री वाला कार्बन है वही जाकर के 4th वाले पार्ट से अटैच होगा। आई थिंक अब आपको ये नाम क्लियर हो गया होगा। 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटिल, 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटिल 2 मिथाइल बेंजीन। क्लियर द नेम? सेक ब्यूटिल। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं। मैं ब्यूटिल वाला कंसेप्ट आपको फिर से बता रहा हूं, स्टार्टिंग से जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे आपके पास एल्केन है, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये क्लास 9th में भी पढ़ाया जाता है, CnH2n+2। इसमें से एक आप हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये बन जाता है एल्काइल ग्रुप। तो बच्चों मैंने अभी जो आपके सामने चेन लिखी है, दिस इज एन ब्यूटेन, और अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे तो ये बन जाएगा एन ब्यूटाइल। तो एन ब्यूटाइल बच्चों आपको लिखने आना चाहिए। आपने क्या किया, सिर्फ एक H यहां से कम कर दिया, ठीक है। तो ये बच्चों ब्यूटाइल हो गया। अब जो ब्यूटाइल है उस ब्यूटाइल में कितनी पोजीशन क्रिएट हुई है, 1 2 3 4। तो अगर हम यहां पे कोई ग्रुप अटैच करते हैं तो ये कहलाएगा 1 डिग्री। और बच्चों मान लो हमने पहली पोजीशन से हाइड्रोजन हटा करके दूसरी पोजीशन से एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि जब आप ब्यूटेन से ब्यूटाइल बना रहे हो, यानी एक हाइड्रोजन कम कर रहे हो, तो हाइड्रोजन को कम करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप प्राइमरी यानी 1 डिग्री पोजीशन से कम कर दो, या तो आप 2 डिग्री यानी सेकेंडरी पोजीशन से कम कर दो। जब प्राइमरी पोजीशन से कम करोगे तो उसको कहते हैं एन ब्यूटेन, और जब दूसरी पोजीशन यानी
2 डिग्री से कम करोगे तो उसको हम लोग कहते हैं सेक ब्यूटेन। दिस इज द वे टू राइट द सेक ब्यूटेन। अब बच्चों 4th पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, सेक ब्यूटेन लगा हुआ है। तो 4th पोजीशन पे सेक ब्यूटेन का मतलब यही होता है जो आपकी स्क्रीन पे बना हुआ है। अब आप इसको ध्यान से देख लीजिए। तो बच्चों चैप्टर का नाम हेलो एल्केन्स है। हम लोग ने IUPAC नेमिंग काफी डिटेल में देख ली। अब आप जो भी IUPAC नेमिंग करेंगे काफी आपसे आराम से हो जाएगी। बच्चों अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, जरा इसको देखते हैं ध्यान से। दिस इज नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अगर आप CX बॉन्ड का नेचर देखेंगे तो बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हमारी जो क्लास, ओके, तो बच्चों ये क्लास ऑटोमेटिक बंद नहीं होगी। देखिए दिस इज द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपके सामने ये CX बॉन्ड का मैंने एक डायग्राम बना रखा है, जिसमें कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ये कार्बन जो होता है बच्चों ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। sp3 हाइब्रिडाइज होने का मतलब ये है कि इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, ठीक है, और इसका जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है। और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कैसा होता है, उसमें हर एटम एक अलग अलग प्लेन में होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसलिए मैंने कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाए हैं उनका शेप थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया, ठीक है। बाय द वे हम लोग को यहाँ पे पोलैरिटी देखनी है, क्या CX बॉन्ड में पोलैरिटी है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग IUPAC नाम तो देख सकते हैं, जितना पढ़ लिया IUPAC नाम दैट इज इनफ, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नेचर ऑफ CX बॉन्ड देखें, क्योंकि हम लोग को उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन करनी है, इसकी केमिकल इक्वेशंस लिखनी है, तो क्या CX बॉन्ड पोलर है? कहोगे सर बिल्कुल पोलर है, क्योंकि X सर हेलोजन होता है। हेलोजन सर कल भी आपने बताए थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जो सर हेलोजन्स होते हैं और जो कार्बन होता है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, टू मच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से यहां पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और X के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है, और इसके पोलर नेचर की वजह से ही यहां पर कार्बन पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन, यानी कार्बन किसकी तरह बिहेव करता है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, और कार्बन रेडी हो जाता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जब उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, और कार्बन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर X यानी हेलोजन ने उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी है, क्योंकि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो बच्चों ये नेचर होता है CX बॉन्ड का। तो CX बॉन्ड पे बच्चों क्या होता है, जो ज्यादातर आप रिएक्शंस देखेंगे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन देखेंगे, और आपके कोर्स में बहुत ही फेमस टाइप ऑफ रिएक्शन है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर, जिसको आप SN2 भी कहते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर, जिसको आप SN1 भी कहते हैं। जो बच्चों ये होता है, ठीक है। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हम लोग डाइपोल मूवमेंट को भी जज कर सकते हैं, और डाइपोल मूवमेंट क्या होता है ये भी आपको पता है। डाइपोल मूवमेंट आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड से हम ये चेक कर लेते हैं कि जिसका जितना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा वो उतना ज्यादा पोलर होगा। और डाइपोल मूवमेंट को मेजर करने के लिए आपको क्या बताया जाता है, चार्ज लेते हैं और उनके बीच का सेपरेशन, जो डिस्टेंस होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डाइपोल मूवमेंट भी देखा जा सकता है। दिस इज नोन एज द डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट की वेक्टर क्वांटिटी होती है डिबाय, इसकी यूनिट होती है डिबाय। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो CX बॉन्ड का जो नेचर है ये पोलर नेचर होता है, जिससे कार्बन पेयर इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट होता है, जिससे वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना आसान हो जाता है, और ये कई तरह की रिएक्शंस देने लगता है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोनोमोलिकुलर, यानी कि SN1। तो बच्चों सबसे पहले हम यहां पर कुछ बातें देख लेते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड पे जो होती है। तो बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कैपिटल D है वो डिबाई है,
तो यहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स दिए हैं उसमें बहुत ही एक फेमस टाइप चीज मिलती है। अगर हमसे पूछा जाता है कि डाइपोल मूवमेंट कैसे वेरी करता है इन केस ऑफ CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, तो मेरे को बच्चों यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट की मैग्नीट्यूड दिए। तो इन मैग्नीट्यूड्स, ये सारे एक्सपेरिमेंटल निकाले गए, ये हम लोग को निकालने नहीं होते। इन मैग्नीट्यूड से हम लोग जज कर सकते हैं कि किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है और किसका डाइपोल मूवमेंट कम है। ठीक है। बाय द वे, अगर आपके पास यहां पर मान लीजिए दे दिया जाए HF, HCl, HBr, HI, तो इनमें से किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा? आप जाहिर सी बात है कहोगे सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो HF वाला बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर होगा। तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर क्या होगा? ये होगा जैसा कि आपके सामने लिखा गया है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन ना कंसिडर करके कोई एल्किल ग्रुप कंसिडर करें जैसे CH3, तो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा एक्सपेरिमेंटल डाटा में कि CH3Cl का डाइपोल मूवमेंट CH3F से ज्यादा होता है। तो शुरुआत में जो दो ऑर्डर्स है इनमें एक्सेप्शंस होता है, इन एक्सेप्शंस को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि CH3Cl का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो CH3F से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि CH3Cl में C और Cl के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है। ये डोमिनेटिंग फैक्टर होता है कि CCl की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो CF से बढ़ जाती है। और बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करती है? डाइपोल मूवमेंट पे, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट होता है चार्ज इनटू उन बीच की डिस्टेंस। तो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डाइपोल मूवमेंट में आती है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मूवमेंट। सो यहां पर हम देख सकते हैं कि CH3Cl का जो डाइपोल मूवमेंट है वो CH3F से ज्यादा होता है। और ये कई सारे एग्जाम्स में भी, बड़े बड़े एग्जाम्स में आ भी चुका है। और ये डाटा यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डाटा से भी क्लियर होता है। तो आपको मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंटल डाटा क्लियर हो गया होगा कि अगर हम CH3Cl और CH3F में कंपेयर करते हैं तो CH3Cl का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है। एक्सपेरिमेंटल डाटा में भी यही है, 1.94 है, जो कि 1.82 से ज्यादा। उसके बाद बच्चों कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से जो आपके पास डाटा होगा वो वैसे ही वर्क करेगा जैसा हम लोग सोचते हैं। जैसे हमने लिख दिया CH2F2, CH2Cl2, ये किसका डाटा है? ये है CH2F2, CH2Cl2, CH2Br2, CH2I2, ये इसके लिए डाटा। तो इसमें ऐसा कोई भी एक्सेप्शन काम नहीं करेगा। इसमें जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो पोलैरिटी कम होती चली जाएगी, यानी ऊपर वाले का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा। इसमें भी बच्चों कुछ इसी तरह से होगा। दिस इज CH3, दिस इज CHCl3, CHBr3। ध्यान से देखिए, मैं लिख देता हूं दोबारा। ऊपर सबसे पहले F है, तो ये हो गया CHF3, CHCl3, CHBr3, CHI3। CHI3 का नाम बच्चों आप लोग आगे भी सीखेंगे, इसका नाम आयोडोफॉर्म भी होता है। और CHBr3 लिख दिया जाए तो उसका नाम ब्रोमोफॉर्म होता है, और CHCl3 लिख दिया जाए तो उसका नाम क्लोरोफॉर्म होता है। तो ये नाम भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपके कोर्स में आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी है, जिसका आयोडोफॉर्म का जो कलर होता है वो येलो प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि CHI3 जो है वो येलो प्रेसिपिटेट होने की वजह से कैसा कलर देता है? येलो प्रेसिपिटेट देता है। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए CHI3 इज आयोडोफॉर्म, CHBr3 इज ब्रोमोफॉर्म, CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म। और इनमें कोई एक्सेप्शंस नहीं। ऊपर से नीचे जाएंगे तो पोलैरिटी कम होने की वजह से डाइपोल मूवमेंट कम हुई होता चला जाएगा। और CX4 वाले में तो क्लियर ही है, सिमेट्री की वजह से डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी होंगी, तो सारे वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाता है। तो बाय द वे आपको ये एक्सेप्शन वाला ऑर्डर जरूर याद रखना पड़ेगा। एक्सेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, कि CH3Cl और CH3F में CH3Cl का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है। यहीं पे ये एक्सेप्शन काम करता है और बाकी कहीं नहीं काम करेगा। बाकी जैसी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा,
because electronegativity is directly proportional to dipole moment. तो आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों काफी अच्छी तरीके से. Now we have to study electrophilic substitution. Why it is known as electrophilic substitution? Heading is electrophilic substitution in NCERT. तो बच्चों इसका नाम क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस सबस्ट्रेट का क्या नाम है? इस सबस्ट्रेट का नाम होता है टोलुइन. तो बेंजीन पे जब बच्चों हम लोग CH3 लगा देते हैं तो उसका नाम टोलुइन होता है. और टोलुइन पे कभी भी हम लोग X2 यानी कि हेलोजेंस का अटैक करते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन भी बहुत सर्टेन होते हैं. ये बहुत सर्टेन टाइप ऑफ रिएक्शन है एंड दिस इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड्स. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो X है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको एरिल हैलाइड्स भी कह सकते हैं. ठीक है ना. और अगर जनरल नाम लेना चाहो तो X की जगह अगर हम क्लोरीन लगा देंगे तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन भी कह सकते हैं, और दूसरे वाले में पैराक्लोरोटोलुइन भी कह सकते हैं. X की जगह आप Br भी लगा सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा. एरिल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स, ध्यान दीजिएगा. व्हाट इज रिटन दैट एरिल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय electrophilic substitution of arenes with chlorine and bromine respectively in presence of Lewis acid and catalyst like iron 3 chloride. बच्चों जब ये स्पेशल कंडीशंस होती है तभी ये प्रोडक्ट बनता है. इसकी एक सर्टेन मैकेनिज्म भी होती है जो भी आपको नीड नहीं है, जब हम लोग ज्यादा पढ़ लेंगे तब उसमें आपको मैकेनिज्म भी थोड़ी बहुत सिखा देंगे कहीं ना कहीं. लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि इसमें प्रोडक्ट जो बनता है वो ऑर्थो पैरा टोलुइन, ऑर्थो और पैरा टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं. तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी. एंड बच्चों ये वाली रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बिना कोई पेपर बनता ही नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन के साथ साथ आप इसमें एक और रिएक्शन देखते हैं. इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं बच्चों डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज नोन एज डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बिना तो पेपर बनता ही नहीं है कभी. और सैंडमियर रिएक्शन तभी पढ़ी जा सकती है जब आपको डायजोटाइजेशन रिएक्शन पता. तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें डायजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या लिया जाता है, एनिलीन लिया जाता है. इसका नाम होता है बच्चों एनिलीन. एनिलीन तो आप जानते भी होंगे वैसे, क्यों भाई, एनिलीन का नाम सुना है कभी? हाँ यस सर. ओके. तो बच्चों अगर हम एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं NaNO2HCl, X की जगह आप Cl लगा सकते हो. NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी कई बुक्स में लिखा होगा, और इस टेम्परेचर को अगर आप केल्विन में लिखना चाहें तो 273 to 278 केल्विन भी हो सकता है. इसमें जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों बेंजीन के ऊपर N2+Cl-, अगर आप X लेंगे तो X- लिख दीजिए. और इस प्रोडक्ट का बहुत ही फेमस नाम होता है, ये नाम मैं आपको लिख के दे देता हूं. जब आप काफी कुछ करेंगे तो आपको पता पड़ेगा. वैसे तो केमिस्ट्री बहुत ही कम लोगों को समझ में आती है, वो तो सिर्फ रटते ही हैं. अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको मैं समझा पूरा रहा हूं तो उससे आपके लिए केमिस्ट्री इजी हो जाएगी, वरना आपको फिर टफ लगेगी. दिस इज N2+Cl-. इसका नाम काफी फेमस है. इसका नाम होता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और पता नहीं कितनी जगह आपको ये मिलने वाला है. और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को यूज करके हम लोग काफी तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं. जैसे बेंजीन से फिनॉल बना दिया, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना लिया, बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन बना लिया, बेंजीन से आयोडोबेंजीन बना लिया. पता नहीं कितने तरह के प्रोडक्ट आप इस डायजोटाइजेशन रिएक्शन को यूज करके बनाने वाले हैं. पहले तो आप ये बेसिक ही समझ लीजिए. दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड. तो दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. और बच्चों जब हम सेंडमायर रिएक्शन की बात करते हैं तो सेंडमायर रिएक्शन डायजोटाइजेशन रिएक्शन से ही जनरेट होती है. तो उस रिएक्शन का नाम होता है डाइएजोटाइजेशन
रिएक्शन, पहले आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप डायजोटाइजेशन रिएक्शन के बाद सेंड मेयर रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक, तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो सेंड मेयर रिएक्शन में कुछ नहीं किया गया है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को लेकर के रिएक्शन कराई गई है। किससे करा सकते हैं रिएक्शन? Cu2X2 से। X क्या हो सकता है? क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी। तो बच्चों अगर आप रिएक्शन देखना चाहें तो मैं आपको रिएक्शन पूरी कंप्लीट लिख के दिखाता हूं, तो ये आपको समझ में आएगा कि सेंड मेयर रिएक्शन किस तरह से चलती है। दो वे होते हैं इसके चलने के। तो बच्चों मैं आपको सेंड मेयर रिएक्शन पूरी तरीके से लिख के देता हूं। एनसीईआरटी में थोड़ा थोड़ा हिडन रहती है इंफॉर्मेशन, कोई बात नहीं, मैं लिख के देता हूं। देखिए, अगर आपने लिखा N2 प्लस X-, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब X ना लिखिए, अब X की जगह आप लिख दीजिए Cl-, N2 प्लस Cl-, और इसकी रिएक्शन आपने कराई Cu2Cl2 से, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन, यानी बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली क्या अटैच हो जाएगा? Cl। क्या अटैच हो जाएगा? Cl। तो उसका नाम होगा बच्चों क्लोरोबेंजीन, और साथ में नाइट्रोजन गैस भी लिबरेट होती है। और इसी तरीके से बच्चों अगर आप लिखते हैं N2 प्लस Br- और लिखते हैं Cu2Br2, तो ये बना देगा ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम होता है बच्चों ब्रोमोबेंजीन, और नाइट्रोजन गैस लिबरेट होती है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सेंड मेयर रिएक्शन। ये आपको जरूर पता होनी चाहिए, सेंड मेयर रिएक्शन, क्योंकि आपका चैप्टर है अमीन्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन का, उसमें भी आपको ये रिएक्शन पढ़ने के लिए मिलेगी। दिस रिएक्शन इज नोन एज सेंड मेयर रिएक्शन। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यहां तक कुछ समझ में आया बच्चों जितने भी क्लास में?